नीट क्लियर करना ही सक्सेस नहीं होता, सही करियर चूज करना सक्सेस होता है. हाय, आई एम डॉक्टर रितिका वाखारे and I have cleared my MBBS from a foreign medical university. I also passed my FMG in my very first attempt. And I have been exactly where you are right now. Confused, pressured, even scared कि आगे क्या करना चाहिए. सब बोलते हैं डॉक्टर बन जाओ, but no one tells you कैसे, कहाँ से and what is best for you. ये सब हमें कैसे पता चलेगा. मैंने 2018 में पहली बार नीट यूजी दी, but didn't get the expected rank. Then I decided to repeat, which was the worst decision because I wasted my 1 year. The next time as well, caste system and rank didn't fall in my court. Then I decided to choose MBBS abroad. मम्मी पापा कहते थे कि बनना तो डॉक्टर ही है, तो चली गई. I faced challenges, but I cracked concepts, learned things the hard way. But you don't have to, because I am here to help you find your career options after NEET UG. It just doesn't end on MBBS. I will also crack down the earnings that an MBBS doctor or a postgraduate doctor gets. So stay with me in this series and we will unlock many possibilities. So now let's dive into stepwise guide ki after NEET UG, what are you supposed to do? A quick introduction about myself again. Dr. Ritika Vakhare, completed MBBS, passed FMG in my very first attempt. This is my graduation day picture where I am getting my degree. And now we come into the main video, that is NEET UG and the future options that we have after appearing for NEET UG. So what can be next? If you get your desired rank and your desired college, then you can go with MBBS in India. If you don't, there are also private colleges where you can apply for MBBS in India. Otherwise, you can choose MBBS abroad. There are other options other than MBBS, that is BDS, जहाँ पर आप dentist बन पाओगे. Then there are Ayurvedic Medical Sciences, BAMS, Homeopathy, BHMS and DUMS. फिर आप नीट यूजी देने के बाद रिसर्च में भी जा सकते हो या अलाइड हेल्थ साइंसेस में जा सकते हो. On both these topics, I will come up with a detailed video that how can you apply for research and allied health sciences and what all comes under it. Also, if you have that much confidence कि अभी नीट यूजी में मेरी ये गलतियां हुई है, but if I give it another chance, तो अगले साल मैं ये गलतियां ठीक करके मुझे अपना desired rank मिल जाएगा. Only then, if you have that confidence, only then think of repeating the NEET UG because this will cost you 1 whole year. This is the exact mistake that I did. In 2018 I thought कि हो जाएगा, 2019 में वापस दी, but unfortunately नहीं हुआ. या फिर होता है कि directly career switch करना. So यहाँ पर इस वीडियो में we will talk from the basic question that you should ask yourself कि why do you really want to get into medical fields? Here are a few options that might be your choice कि मैथ्स एंड फिजिक्स समझ नहीं आती या पसंद नहीं है इसलिए पीसीबी ले लिया, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो नीट यूजी में अपना लक ट्राई कर लेते हैं और डॉक्टर बनते हैं. देन यू आर रियली रॉन्ग क्योंकि एमबीबीएस में भी फिजिक्स एंड रेडियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पर हमें मैथ्स एंड फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है. सो ये दोनों आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आप एमबीबीएस में आ रहे हो फिर भी. देन यू वांट टू अर्न मनी. इस वीडियो में आई एम अनलॉकिंग कि कितने साल जाते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, और आपको किसी ने कहा है कि डॉक्टर बड़ा छापते हैं तो डॉक्टर बन जाओ, काफ़ी पैसा कमा लोगे. उस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी साल जाते हैं एंड फिर भी गारंटी नहीं है कि आप उतना कमा लोगे या नहीं. या फिर अनदर रीजन बिकॉज पेरेंट्स सेट. अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं है, देन प्लीज डोंट गेट इनटू दिस फील्ड. इट इज ऑलरेडी अ टॉक्सिक फील्ड sometimes and it gets oversaturated क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है. You have to dedicate almost your 12 hours into study. So बस पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए MBBS कर रहे हो तो मत आओ. पेरेंट्स को मना लो, भले ही मार खा लो उनकी अभी, पर don't come here. या फिर फ्रेंड्स आर डूइंग सो. आई हैव सीन दिस इन दिस जनरेशन की मेरी फ्रेंड कर रही है नीट यूजी तो मैं भी कर रही हूँ उसका देख के, और वो अगर MBBS करेगी तो मुझे भी वहाँ जाना है. ऐसा मत करो. फ्रेंडशिप्स टेम्पररी हो सकती है बट आपका करियर चॉइस नहीं. सो थिंक अबाउट इट, थिंक योर सेल्फ कि डू यू रियली वॉन्ट टू कम इन टू मेडिकल साइंस, एंड इफ यू आर पैशनेट इनफ टू कम देन यू आर मोस्ट वेलकम. देन कम स्टूडेंट्स हु आर रियली पैशनेट टू बिकम डॉक्टर, कि बचपन से उनको डॉक्टर ही बनना है और दे हैव सीन देयर गार्डियंस और देयर पेरेंट्स बीइंग डॉक्टर, और they have it in their mind like it is, और they have it in their mind कि हमें डॉक्टर के अलावा कुछ बनना ही नहीं है.
then you're most welcome. But there comes pros and cons. तो पहले तो हम ये डिकोड करेंगे कि MBBS का कोर्स एंड ड्यूरेशन क्या है. If you are choosing MBBS in India, then it is a 4.5 years of academic course and 1 year of clinical rotational internship. तो MBBS इंडिया में कर रहे हो तो आपके 5.5 साल टोटल जाने वाले हैं. बट इफ यू चूज टू डू MBBS इन फॉरेन कंट्री, तो रशिया में 6 साल की MBBS होती है. एंड इन 6 साल में आपको सिर्फ वहां की डिग्री मिलती है, जो इंडिया में वैलिडेट करने के लिए आपको FMG, दैट इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, देनी ही पड़ती है. देन ये बाकी कंट्रीज का डेटा है, बट ये सिर्फ डिग्री मिली आपको उस कंट्री से. वैलिडेट करने के लिए यू नीड अ 6 months प्रिपरेशन फेज फॉर FMG. Then another 6 months goes in documentation and counseling. अब मेरी एग्जाम Jan 2026 में हुई है and it is May 2026 now. अब तक हमारे हाथ में लाइसेंस नहीं आया है. हमारा बस NMC से काउंसलिंग हुआ है, हमारा स्टेट काउंसलिंग अभी पेंडिंग है. सो ये 6 months वेस्ट होते हैं बिकॉज यू कांट प्रैक्टिस, यू कांट अर्न मनी टिल. अब आती है 1 year ऑफ कंपल्सरी क्लिनिकल रोटेशन इंटर्नशिप इंडिया में, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को करनी पड़ती है. So total your 6 years of degree, 1 year of FMG plus counseling plus 1 year of internship. So total 8 years. 8 years will go if you choose to take MBBS or if you choose to go and pursue MBBS from a foreign country. Then stipend that you will get during internship, जिन लोगों को पैसा कमाना था इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या फिर जिन्होंने इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से की है, उनको महाराष्ट्र में 18,000 की स्टाइपेंड है. एंड 18,000 स्टाइपेंड इज जनरली गिवन इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर दिल्ली. दिल्ली में 26,000 की स्टाइपेंड मिलती है. जो लोग FMGs है उनके लिए गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि देनी चाहिए, बट हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी नहीं देती है. कई कई जगहों पर 3 या 4 हजार की भी स्टाइपेंड मिलती है. So that's about the stipend. Now if you are just doing plain MBBS, तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएटेड हो 30,000 to 50,000, एक्सपीरियंस्ड हो तो 50,000 to 80,000, और आप PHC में एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन हो रहे हो, then you will get a salary of 90,000 to 1 lakh rupees. वो भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से देते हैं and it depends on which place you are doing that. Then the stipend that you will get if you are into post graduation residency, मतलब आपने नीट PG दे दी और आप नीट PG के 3 साल जब हॉस्पिटल में हो, तो वो हॉस्पिटल आपको स्टाइपेंड कितना देगा, that will come up to rupees 90,000 to 1 lakh depending on which university or which hospital you are practicing and what is your branch. Then the salary of PG doctor, मतलब आपने MBBS के 6 साल उसमें डाले, PG के 3 साल डाले, उसके बाद आप PG डॉक्टर हो, फिर आपको सैलरी कितनी आएगी. ऑन एन एवरेज 10 साल अगर पकड़ के चलो कि 10 साल आपने पढ़ाई की है, देन आप गवर्नमेंट से PG डॉक्टर हो तो आपको 75,000 रुपीज 3 लाख पर मंथ की सैलरी आ सकती है. दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ती भी है, बट इट टेक्स अ टाइम टू ग्रो. अगर आपने प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया हो, तो आपकी स्पेशलिटी के हिसाब से आपको 1.5 लाख से 5 लाख तक की सैलरी पर मंथ मिलती है. ये अगेन एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है. सो 10 से 12 साल जब आप इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आपकी सैलरी इस मुकाम तक पहुंच सकती है. सो अगर पैसा कमाने का मोटिव हो तो ये बहुत ही एवरेज सैलरी है MBBS करने के बाद. सो इफ दैट इज अ मोटिव, डोंट कम. इफ योर मोटिव इज कंप्लीटली बेस्ड कि आपको हेल्थ साइंस में आना है, आपको लोगों को क्योर करना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम. एंड दिस फील्ड विल डिमांड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, a lot of hard work, multiple hours of studying and sitting in one place. Sometimes you get single, you have breakups and all. So that's it. And thank you for watching. Stay tuned, stay connected, because I will come up with such series where I will unlock each and every step that we can go after NEET UG. Until then, happy study.